students of class second year. Today is our second lecture of the week, and overall is our lecture number 14. In the last lecture, I have started the unit 2. I told you about the basic theme of that unit, which was hope and aspiration. Then we started our section 2.1 reading section. The name of the unit, the name of the section was I Have a Dream. Just a quick recapitulation of what we read in the last lecture. It is a speech of an African American, Martin Luther King Jr. The basic theme, the basic concept of this unit, of this speech, is racial discrimination, to distinguish different races on the basis of their color. I have given you a detailed description of that racial discrimination, especially in American society. Who was Martin Luther King Jr.? He was a Baptist minister and activist. Who is Baptist minister? Baptist minister is a person, a religious person who performs religious duties in a church. And what are his duties? He performs baptism. What is baptism? It is a Christian rite, R-I-T, rite, rasam. They sprinkle water on the forehead of a person who is administered to the church very first time. That process is called baptism. Baptist minister, someone who administers baptism to adults who profess to be Christians. यानी जो Christians मजहब इख्तियार करते हैं या फर्स्ट टाइम जो चर्च में एंटर होते हैं, दाखिल होते हैं, एंट्री होती है, तो बैप्टिज्म परफॉर्म किया जाता है, उनको पानी का छिड़काव किया जाता है उनके फोरहेड पर, पेशानी पर. उस प्रोसीजर को कहा जाता है बैप्टिज्म. The person who performs that baptism is a Baptist minister. Another term used for Martin Luther King Jr., he is an activist. I have told you its meaning. A person who performs a very proactive role, very important role in a movement. And our leader Martin Luther King Jr. performed a very important role in civil rights movements in America from 1955 to 1968 until he was assassinated. Moreover, in his speech he gives the reference of a great American president, Abraham Lincoln. He was president of America from 1861 to 1865. And he also gives the reference of a treaty named Emancipation Proclamation, which was signed in 1862, and slavery was abolished in American society due to this Emancipation Proclamation. Now, in this speech, he gives a comparison of African Americans 100 years back, and now he finds no difference. He says that the condition is still the same as it was 100 years ago. Now, he gives a reference to a check. Reference देता है कि we have come here to cash a check. Means we want to get those rights which were written in that Emancipation Proclamation. But he says that we are given a bad check.
means the promises are not fulfilled, and we are told we have insufficient funds. Black people are told their rights cannot be given to them, but he is giving hope to his followers in his speech. Today we will continue from where we left in the last lecture, and it was from now it is the time. Now is the time to open the doors of opportunity to all God's children. God's children. He's referring to all the people, all the nations, especially Christian people there, God's children. क्या कह रहा है जी कि अब वक्त आ गया है, यानी हमें क्या कहा गया है, पिछले लेक्चर में क्या बात हुई थी कि इनसफिशिएंट फंड्स हैं, चेक कैश कराने आए हैं और हमें बैड चेक दिया गया है, लेकिन क्या है कि अब वो मौका है खुदा की तमाम मखलूक के लिए, गॉड्स चिल्ड्रन सब के लिए क्या मौका है कि उनके लिए अब तमाम मौके, तमाम अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो ओपन की जाएं. नाउ इज द टाइम टू ओपन द डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी. मौकों के जो दरवाजे हैं वो अब खुदा की तमाम मखलूक पर, चाहे वो गोरे हैं या काले हैं, सफेद फार्म है या स्याह फार्म है, अब वक्त है कि अब तमाम को उनके हक दिए जाएं. नाउ इज द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन. पर अब वक्त है कि वी शुड लिफ्ट आवर नेशन. हमें अपनी कौम को उठाना है from the quicksand of racial injustice to the solid rock of brotherhood. Quicksand, daldal, a deep mess of loose sand that sucks everything which falls on top of it. दलदल, कीचड़ का, रेत का एक ऐसी जगह जो अपनी तरफ हर चीज को खींच लेती है, धंसा लेती है, उसे वो कहते हैं दलदल. तो अब क्या कह रहे हैं जी, इट इज टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन फ्रॉम द क्विकसैंड ऑफ रेशियल इंजस्टिस. ये जो नस्ली नाइंसाफी है, इसकी दलदल से अब इस कौम को उठाने का वक्त है. ये दलदल में धंसी हुई है हमारी नेशन, किस वजह से? रेशियल इनजस्टिस की वजह से. अब उसको वहां से निकालने का वक्त है. और कहां लेके जाना है जी? टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड, यानी दलदली जमीन से निकाल के सॉलिड जगह पे लेके जाना है, ऊंची जगह पे लेके जाना है, रॉक पे लेके जाना है. और वो किस चीज का रॉक है? दैट इज रॉक ऑफ ब्रदरहुड. अगेन ही इज एम्फसाइजिंग दैट नो वन इज सुपीरियर ऑन द बेसिस ऑफ कलर. It would be fatal for the nation, fatal, मोहलिक, तबाह करने वाला, having the power to kill someone. It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment, urgency, need, urgency of the moment, and to underestimate the determination of the Negro. और का वार्न भी कर रहे हैं, खतरात से भी आगाह कर रहे हैं. It would be fatal for the nation, कि हमारी इस कौम के लिए ये तबाहकुन होगा, मोहलिक होगा. To overlook, कि निगलेक्ट कर दें, नजरअंदाज कर दें, the urgency of the moment, इस लम्हे की जो जरूरत है, जो नीड है, उसको नजरअंदाज कर दिया जाए. And to underestimate, और अंडरएस्टिमेट किया जाए, वो करना दी जाए, अहमियत ना दिया जाए, गलत अंदाजा लगाया जाए. किस चीज के बारे में? द डिटर्मिनेशन ऑफ द नीग्रो, जो नीग्रो का अज़्म है उसके बारे में. यानी क्या कह रहा है जी कि इस वक्त की अहमियत को नजरअंदाज करना और स्याह फाम लोगों के अज़ाइम का गलत अंदाजा लगाना, कि उनकी बात को सही तरह से ना समझना, इस कौम के लिए फैटल होगा, डेंजरस होगा, मोहलिक होगा. दिस स्वेल्टरिंग समर, स्वेल्टरिंग झुलसा देने वाला, वेरी हॉट, ये फिर सिंबॉलिक यूज कर रहा है. दिस स्वेल्टरिंग समर ऑफ द नीग्रोज लेजिटिमेट डिसकंटेंट, लेजिटिमेट, लीगल, जायज,
This sweltering summer of the Negroes' legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of the freedom and equality. Invigorating, having the power to revive something, किसी चीज को दोबारा से एनर्जी देना, जिंदा कर देना, something that is given vitality, हरकत दी जाती है, एनर्जी, उसको एनर्जी जिसमें भर दी जाती है, उसको कहते हैं इनविगोरेट कर देना। तो इसको ट्रांसलेट को दोबारा करेंगे। This sweltering summer of the Negroes' legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. एक तरफ समर कह रहा है, एक तरफ ऑटम कह रहा है। समर से मुराद यहाँ पे सिंबॉलिक सेंस में क्या है कि जो दौर चल रहा है मुश्किल का, आजमाइश का, और ऑटम से क्या मुराद है, जो खुशी का दौर है, अच्छा दौर है, यहाँ पे उस सेंस में मुराद ली जा रही है। तो स्याफाम लोगों के जायज जो मुतालबात हैं या जायज अदम इत्मीनान का, जायज अदम इत्मीनान, स्याफाम लोगों के जो जायज अदम इत्मीनान है, यानी अगर वो मुतमईन नहीं है तो दैट इज वेरी ट्रू का ये गर्म मौसम उस वक्त तक खत्म नहीं होगा। ये जो स्वेल्टरिंग समर है उनके लेजिटिमेट डिसकंटेंट का उस वक्त तक ये खत्म नहीं होगा जब तक क्या होगा जी, उनकी आज़ादी और मसावात को तक़वियत देने वाला, इनविगोरेट करने वाला मौसम नहीं आएगा। कौन सा मौसम होगा? वो अच्छा मौसम होगा, वो ऑटम का मौसम होगा। स्याफाम लोगों के जायज अदम इत्मीनान का ये गर्म मौसम उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक उनकी आज़ादी और मसावात को तक़वियत देने वाला, इनविगोरेट करने वाला ऑटम शुरू नहीं होगा, अच्छा मौसम शुरू नहीं होगा। 1963 is not an end but a beginning। 1963 क्यों इम्पोर्टेंट है कि he is delivering his speech in that particular year। तो क्या कह रहा है कि ये जो जमाना चल रहा है 1963, it is not an end but it is a new beginning। ये हमारा इख्तिताम नहीं है बल्कि आगाज है। Those who hope that the Negro needed to blow off steam, blow off steam phrasal verb मुहावरतन यूज हुआ है, blow off steam to cool down। Those who hope that the Negro needed to blow off steam, जो ये उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि जो ये कह रहे हैं हमें कि नीग्रो को अब कूल डाउन हो जाना चाहिए, अब उनके बहुत सारी चीजें अगर एक्सेप्ट की जा रही हैं तो उनको कूल डाउन हो जाना चाहिए, and will now be content, और अब उन्हें मुतमईन हो जाना चाहिए। will have a rude awakening, तो क्या होगा जी कि चौंका देने वाला, रूड अवेकनिंग, एक चौंका देने वाला इंकशाफ होगा उनके लिए। एक द नेशन रिटर्न्स टू बिजनेस एज यूजुअल, यानी इस मामले को हल किए बगैर, नीग्रोस के डिसकंटेंटमेंट खत्म किए बगैर अगर लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कूल डाउन हो जाए तो उनके लिए ये चौंका देने वाला इंकशाफ होगा कि मुल्क अपनी जगह पर दोबारा उसी हालत में वापस आ जाए जैसा इस तहरीक से पहले था। There will be neither rest nor tranquility in America। थोड़ी सी धमकी भी दे दीजिए। There will be neither rest, ना ही इत्मीनान होगा, रेस्ट होगा, nor tranquility, tranquilizers लास्ट लेसन में यूज हुआ था, tranquility सुकून होगा ना ही in America until the Negro is granted his citizenship rights। कब तक जी? जब तक नीग्रो को उसके शहरी हकूक नहीं दिए जाते। The whirlwinds of reward will continue to shake the foundation of our nation until the bright day of justice emerges। whirlwinds, तेज तूफान को कहते हैं, भंवर, शदीद तूफान। The whirlwind of reward, ये जो बगावत का शदीद तूफान है, will continue to shake the foundation of our nation। ये हमारी इस कौम की बुनियादों को हिलाता रहेगा until the bright day of justice emerges, जब तक इंसाफ का रोशन दिन नहीं आ जाता। But there is something that I must say, important पैराग्राफ बच्चों मैंने रेफरेंस दिया था पिछले लेक्चर में कि he was given the Nobel Prize and why he was given the Nobel Prize इस पैराग्राफ में ये apparent है।
But there is something that I must say to my people who stand on the warm threshold which leads into palace of justice. Threshold कहते हैं starting point, दहलीज। तो मैं अपने लोगों से, उन लोगों से जो कि इस गर्म दहलीज पे खड़े हैं और जो उनको अमन के महल की तरफ लेके जाएगी, अमन की तरफ लेके जाएगी, मैं उनको क्या कहना चाह रहा हूं? In the process of gaining our rightful place, कि हमने अपना जायज हक लेना है। We must not be guilty of wrongful deeds, लेकिन उस जायज हक को लेने के लिए हमें wrongful deeds नहीं करने हैं, हमें गलत कामों की तरफ मायल नहीं होना है। मैंने आपको बताया था कि नॉन वायलेंट थी ये सारी मूवमेंट और लूथर किंग जूनियर का बहुत रोल था उसमें, जिस वजह से उसे नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो क्या कह रहे हैं जी कि आपने जायज चीज लेनी है लेकिन रॉन्ग वे से नहीं लेनी। लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट फॉर फ्रीडम बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हेट्रेड। कह रहे हैं जी कि जो आजादी की प्यास है, जो हमारे अंदर जिसमें कि आजादी की प्यास है, इसको हमने तलखी और नफरत के प्याले से इस प्यास को नहीं बुझाना। We must forever conduct our struggle on the high place of dignity and discipline। वजीर गाइड क्या कर रहे हैं कि हमें हमेशा अपनी जिद्दोजहद को इज्जत, वकार और नज्म ज़ब्त के दायरे में रहकर करना है। We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence। degenerate ऐसा था किसी चीज का ज़वाल, खत्म हो जाना, किसी चीज का डिके हो जाना। तो क्या कह रहा है जी कि we must not allow our creative protest, ये जो हमारा creative protest है which is going to create something new, we must not degenerate it into physical violence। जिस्मानी तशद्दुद में तब्दील नहीं करना है इसको हमने। Again and again we must rise to majestic heights, उन अजीम बुलंदियों तक, majestic heights तक हमने जाना है, of meeting physical force with soul force। और कैसे जाएंगे हम? जब अपने जिस्मानी और रूहानी ताकतों को मिला देंगे, जिस्मानी और रूहानी ताकतों को मिलाकर हमने अपनी अजीम बुलंदियों तक जाना है। The marvelous new militancy, मिलिट्री से निकला है, यानी मिलिटेंसी का मतलब ये होता है कि वो जो ताकत है, फौजी ताकत। The marvelous new militancy, ये अजीम नई फौजी ताकत, यानी जो अजीम एक नई फौज बन रही है ब्लैक पीपल की, which has engulfed the Negro community, जो सारे नीग्रो कम्युनिटी पर अब छाती जा रही है, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग नीग्रो की फोर्स बन चुकी थी, मिलिटेंट फोर्स बन चुकी थी उस वक्त, जिसका बहुत ज्यादा असर रसूख था। लेकिन फिर वो वार्न कर रहे हैं, फिर गाइड कर रहे हैं कि जो मिलिटेंसी फोर्स बनी है मस्ट नॉट लीड अस टू डिस्ट्रस्ट ऑफ ऑल वाइट पीपल। इससे ये नहीं होना चाहिए इस फौज को हम गलत इस्तेमाल करें और हम अपने जो सफेद कौम लोग हैं उनको डिस्ट्रस्ट कर दें, उनका एतमाद ना जीत सकें। ये ना हो कि हम उनको नुकसान पहुंचा दें और जो ट्रस्ट की फजा है वो खत्म हो जाए। फॉर मैनी ऑफ आवर वाइट ब्रदर्स, कि बहुत सारे जो सफेद कौम लोग हैं, एज एविडेंस्ड बाय देयर प्रेजेंस हियर टुडे, कि एविडेंस है ये कि आज यहाँ सामने मेरे बहुत सारे वाइट पीपल भी मौजूद हैं, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny। तो उनको एहसास हो चुका है बहुत सारे वाइट पीपल को भी कि उनकी डेस्टिनी, उनकी फेट हमारी फेट के साथ, हमारी लक के साथ दोनों टाइड हैं, जुड़ी हुई हैं, मंजिलें एक हैं दोनों की। And their freedom is inextricably bound to our freedom, inextricably, in whole sense, मुकम्मल तौर पर, in a complete sense, मीनिंग लिखा हुआ है इसका भी, कि उन्हें पता चल गया है कि मुकम्मल तौर पर उनकी किस्मत हमारी किस्मत के साथ जुड़ी हुई है। We cannot walk alone, अकेले तो नहीं चल सकते हमने उन्हें साथ लेके चलना है। तो उनका हमें मिसट्रस्ट नहीं चाहिए, हमें वायलेंस की तरफ नहीं जाना है।
एंड एज वी वॉक, और अब जब हमारा ये सफर जारी है, हम चल रहे हैं, वी मस्ट मेक द प्लेज, प्रॉमिस करना है, ये अहद करना है, दैट वी शैल मार्च अहेड, हमें आगे बढ़ते जाना है, मार्च करते जाना है आगे। वी कैन नॉट टर्न बैक, अब वापसी का रास्ता नहीं है, अब वापस नहीं पलट सकते हैं। देयर आर दोज हु आर आस्किंग द डिवोटीज ऑफ सिविल राइट्स, डिवोटीज ऑफ सिविल राइट्स, जिन लोगों ने सिविल राइट्स के लिए, सिविल मूवमेंट्स के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया है, डिवोट कर दिया है, तो बहुत सारे लोग इन डिवोटीज से, इन वक्फ करने वालों से, इन मुखलिस कारकुनों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं जी? When will you be satisfied? वो इतने साल गुजर गए हैं, 10 साल से मूवमेंट चल रही है, 8 साल हो गए हैं, आपको बहुत सारी चीजें मिल भी गई हैं, तो वो सवाल क्या करते हैं कि कब मुतमईन होगे तुम लोग, इतना कुछ तो मिल रहा है, कब तुम सेटिस्फाइड होगे? तो क्या जवाब है जी? We can never be satisfied, हम उस वक्त तक मुतमईन नहीं होंगे as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality, torture। उस वक्त तक हम मुतमईन नहीं हो सकते जब तक स्याह-फाम लोग पुलिस के नाकाबिले बयान मुजालिम, अनस्पीकेबल, नाकाबिले बयान मुजालिम का शिकार रहेंगे। जब तक हमारे लोगों पे पुलिस तशद्दुद करती रहेगी, हम मुतमईन होने वाले नहीं हैं। We cannot be satisfied, हम मुतमईन नहीं हो सकते as long as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one। ghetto कहते हैं ये जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनके साथ जो स्लम एरिया, जो छोटी छोटी कच्ची बस्तियां होती हैं, डेंसली पॉपुलेटेड होती है, बहुत ज़्यादा आबादी होती है उनमें, लेकिन वो बेसिक फैसिलिटीज से, जो शहर वाली फैसिलिटीज हैं उनसे महरूम होती हैं, दैट इज कॉल्ड गीटो। तो क्या कह रहा है जी कि हम उस वक्त तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक हमारा जो स्याह-फाम है इस स्मॉलर गीटो से, स्मॉलर एरिया से निकलकर बड़े शहरों की तरफ नहीं चला जाता, उसे बड़े शहरों में प्रॉपर जगह नहीं मिल जाती। We can never be satisfied, हम उस वक्त तक मुतमईन नहीं हो सकते as long as a Negro in Mississippi, जो उसकी रियासत है अमेरिका की है जी, कैन नॉट वोट, कि जब तक मिसिसिपी का जो नीग्रो है उसे वोट का हक नहीं मिलता, एंड अ नीग्रो इन न्यूयॉर्क बिलीव्स, और न्यूयॉर्क का जो नीग्रो है वो ये यकीन कर ले ही हैज नथिंग फॉर विच टू वोट, कि उसके पास अब वोट करने के लिए कोई ऐसी चीज ही नहीं जिसके हक में वो अपना वोट इस्तेमाल कर सके, यानी सब कुछ मिल चुका है उसे। नो वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम मुतमईन नहीं हैं, एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड, और हम उस वक्त तक मुतमईन नहीं होंगे until justice rolls down, जब तक इंसाफ बह नहीं जाता, रोल डाउन नहीं हो जाता। लाइक वाटर्स, यानी बहते पानियों की तरह इंसाफ नजर नहीं आता जब तक। एंड राइटियसनेस, और जो नेकी है वो कैसे हो जाए? लाइक अ माइटी स्ट्रीम, वो ऐसी हो जाए, नेकी ऐसे बहती हो जैसे एक ताकतवर नदी होती है। I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. Trials and tribulations दोनों का मतलब एक ही है, sufferings, difficulty, आजमाइशें, तकलीफें। कहते हैं कि मार्टिन लूथर किंग, मैं अनमाइंडफुल नहीं हूँ, मैं इस बात से बेखबर नहीं हूँ कि आप में से कुछ लोग यहाँ बड़े ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशंस के बाद आए हैं, बड़ी आजमाइशों के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं आप। Some of you have come fresh from narrow jail cells. बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ मौजूद हैं जो कि ताज़ा जेल की तारीक कोठरियों से बाहर आए। Some of you have come from areas where your quest for freedom, कुछ तो आप में से ऐसे इलाकों से आए हैं जहाँ ये जो क्वेस्ट है, ये जो सर्च है आपकी फ्रीडम के लिए, left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality। परसिक्यूशन का लफ्ज़ी मतलब जो होता है जुल्म, मजालिम,
और ब्रूटैलिटी किसी सेंस में आता है, तशद्दुद की सेंस में आता है। तो हवाला दे रहा सामने जो लोग मौजूद हैं कि तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जहां जो ऐसे इलाकों से आए हैं जहां आपकी आजादी की तलाश में, क्वेस्ट फॉर योर फ्रीडम, आपको झंझोड़ दिया है, आपको लेफ्ट कर दिया, झंझोड़ दिया है, और अजियत के तूफान, पुलिस ब्रूटैलिटी, पुलिस का तशद्दुद, पुलिस की बर्बरियत के मजालिम ने आपको लड़खड़ा दिया है, स्टैगर कर दिया है। यानी आप में से बहुत सारे ऐसे आए हैं, लेफ्ट यू बैटर्ड बाय द स्टॉर्म ऑफ परसिक्यूशन, जुल्म के तूफानों से आप झंझोड़े गए हैं, एंड स्टैगर्ड, और आप लड़खड़ा गए हैं, बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी, पुलिस के जुल्म और तशद्दुद की वजह से। यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, आप क्या हैं जी कि अब आप तकलीफ बर्दाश्त करने का, नए काम करने में, नई आज़ादी की जो तकलीफ होती है, अब आप उसके वेटरन हो चुके हैं, आजमूदाकार हो चुके हुए हैं। इस सिलसिले में हमें जो तकलीफें मिलती हैं अब वो उठा उठा के आप पुख्ता हो चुके हैं। Continue to work with the faith, अपने ईमान के साथ, अपने यकीन के साथ काम जारी रखें। That unearned suffering is redemptive. Unearned suffering is redemptive. Redemptive कहते हैं निजात का बायस बन जाना, to make amends for, to be restored to someone's favor. क्रिश्चियन टर्म है कि वो कहते हैं कि यानी उनकी रिडेम्पशन जो है वो हज़रत ईसा से लिंक है कि उन्होंने तमाम इंसानों के लिए वो रिडेम्पशन का उन्होंने काम किया है अपने एग्जीक्यूशन के बाद। तो बाहर हम इसको डिटेल बात नहीं करेंगे। तो रिडेम्पटिव निजात का बायस बनती है, यानी जो अनअर्न्ड सफरिंग है, जो बगैर किसी हमें वजह से जो मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो क्या होते हैं, वो रिडेम्पटिव होते हैं, वो हमारे लिए ऊपर जाके निजात का बायस बनेंगे। गो बैक टू मिसिसिपी, इस रियासत में वापस जाएं, मुख्तलिफ रियासतों के नाम ले रहा है कि इसमें वापस जाएं। गो बैक टू अलाबामा, गो बैक टू साउथ कैरोलिना, गो बैक टू जॉर्जिया, ये सारी अमेरिका के डिफरेंट स्टेट्स हैं। गो बैक टू लुइसियाना एंड गो बैक टू स्लम एंड गीटोज ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज, जो स्लम्स एंड गीटोज हैं, हमारे छोटे छोटे कस्बे हैं नॉर्दर्न सिटीज के, इन सब में आज इस मेरे काम के बाद, स्पीच के बाद आप लोग वापस जाएं, knowing that somehow this situation can and will be changed। लेकिन इस ईमान के साथ आज आपने वापस जाना है कि ये जो सिचुएशन है हमारी तब्दील हो के रहेगी। Let us not wallow, wallow कहता है वैंडर होना, घूमना फिरना, in the valley of despair, हमें इस मायूसी की वादी में नहीं घूमना। That's all for student today. I hope you have learned some other main points of this lesson. Inshallah, in next lecture I will complete this lesson. Thank you.